Hello students, I welcome you to one more unit of our IKS journey, Indian Knowledge System, and for accounting and finance. We are now into the unit 3 where we are going to learn about Deshi Nama system, our traditional method, our Indian system. Alright, so let's have a look into that. So so far in 1494 when Luca Pacioli on 10th November when he invented double entry system. So my question for you is, did accounting does not exist before that? No, as we have seen the vast history with the various civilization of accounting. मेरा ये मानना है कि हमारे इंडियन सिस्टम में भी, इंडियन सिविलाइजेशन में भी हमारा खुद का यानी देशी स्वदेशी अपना सिस्टम एंड नामा मीन्स अकाउंट, हमारा खुद का एक सिस्टम अकाउंटिंग में है और था, और जो अभी भी आगे कंटिन्यू हो रहा है, जिसे हम कहते हैं वही खाता पद्धति, हमारा खुद का देशी नामा सिस्टम। तो आइए जानते हैं देशी नामा सिस्टम में किस तरह से हम आगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देशी नामा system is a very old system. It is derived and adopted in the Indian subcontinent. And to write accounts, this system is older than double entry system as we said. ये सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम से भी पुराना है और यहाँ इन दोनों सिस्टम में बहुत सारी सिमिलैरिटी देखने मिलती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्हें अलग बनाती हैं। इन दोनों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देशी नामा का नाम वही खाता पद्धति इसीलिए है क्योंकि ये खाता मीन्स अकाउंट जिसे हम कहते हैं, नामा यानी अकाउंट्स, और इन्हें लिखा जाता था बुक्स में जिनको बही BAHI या वही कहा जाता है। Therefore, it is known as वही खाता पद्धति. It means देशी नामा system. Now, this system is recorded in our regional language, as देशी नामा system has a very vast adoptance in Europe, in Western system. तो वहाँ से जब इसका ओरिजिनेशन हुआ, it is adopted in English, but देशी नामा is today also written in various regional languages. Suppose if you go to Gujarat, it will be in the regional language, obviously Gujarati, right? Then if you go to Rajasthan, it will be in Hindi or Rajasthani, Marwadi. If you go to Kathiawad, it will be in Kathiawadi language. If you go to various other places, like in north, it will become in Hindi, North Indian language. If you go to south, well and words diversified. यहाँ पर आपको 5 सिस्टम देखने मिलेगी, 5 अलग अलग लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, Malayali, and different languages you can see. So Deshinama system is in various languages, and this itself was the limitation of this system, because अगर आप अलग अलग सिस्टम से अपने अपने अकाउंटिंग बनाएंगे, तो सपोज द बिजनेस ऑफ गुजरात wants to compare the result with business of Maharashtra, which is in Marathi language, तो गुजराती एंड मराठी लैंग्वेज के हिसाब से अपने अपने बिजनेस को ही वो समझ पाएंगे, किसी दूसरे बिजनेस को नहीं, एंड विच वॉज द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस देशीनामा लैंग्वेज सिस्टम. तो इन दिस still we go through with the regional language, and now let's talk about the characteristics of Deshinama system. In this, the books that are designed, they are covered with the red cloth, with the very red cloth. Why only red? No, it does not mean danger, isn't it? It means just the auspicious thing indicates the red color. Red color is also for the auspiciousness, and red color is also for the sacred thing. Therefore, we have adopted red. It is hardbound book. आप जो book use करते हैं यहाँ पर, it will be for regular use throughout the year. So with the leaves of pages on both the side, it is with the hardbound register, and it is tied with the strings so that we can use the leaflets, we can add the leaflet, and we can also keep the leaflets off from it. All right. Now it is the following year. The year that is followed here will be the Vikram Samvat. Now इनके फाइनल अकाउंट 31 मार्च को नहीं बनते हैं, my dear students. They are made as per the Vikram Samvat, that is the year that we are following. In our Gujarati system, we say it will be from Bestu Varash થી લઈને દિવાળી સુધી. It means from the new year, when we supposed to go for new year, we make a new year on
जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर दिवाली, जिसे हम हमारे गुजरात में और हिंदी में भी कहते हैं कारतक सुद एकम. And here for a month we have two main things. We have paksha here. That paksh will be in an increasing order of moon. Lunar eclipse के हिसाब से हमने इसे बनाया है. As per lunar calendar we are following this paksh. So increasing from first date to 15th date. एकम थी लेने पूनम. एकम से पूनम तक का जो सफर है उसे कहा जाता है सूद, शुक्ल पक्ष, राइट. एंड then from Vad calendar, in the decreasing order of moonlight we go, so it becomes Shukla Paksha, which is Krishna Paksha, also known as Krishna Paksha. So these are both the Paksha of 15 days each, which forms a full month, and so multiplied with 12 months it go with our Vikram Samvat year, full year. So as we can say, in our regional system we had a very best thing that we end our accounting year on Diwali. So Diwali is our 31st, isn't it? Which is also known as Asovat Amas, right? So our financial year does not go regional system यानी देशीनामा system का final accounts 1 अप्रैल से 31 मार्च नहीं जाता है. ये जाता है कारतक सुद एकम से आसोवद अमास तक. तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है जो वेस्टर्नाइजेशन सिखाते हैं. आपको पता ही है उनके 31 पे वो किस तरह से ईयर को एंड करते हैं. बट we end our year in very sacred and auspicious manner, the day when whole earth is into without moon. उस दिन अमास होती है. अमास के दिन हम अपना ईयर एंड कैसे मनाते हैं? हम इसे दिया जला करके मनाते हैं, जहाँ पर हम मानते हैं कि इस साल की जितनी भी चीज़ें हमने, जितनी भी गलतियाँ हमने की वो सब पूरी हो जाए, वो सब अब दोबारा ना की जाए. और इसीलिए हम जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि, और याद करना दोस्तों, इसके पहले आपने एक चौपड़ा पूजन यानी बुक्स का जो पूजन किया जाता है, इस तरह से एक वर्ड भी सुना होगा. पर आपको लगता है कि आज तक कब चौपड़ा पूजन हुआ और किस तरह से किया गया, किस चौपड़े की बात की गई? हमारा तो साल जून में स्टार्ट होता है, तो उन पे तो कोई भी पूजा सामग्री वगैरह नहीं की जाती. तो ये मज़े की बात है कि जो आज तक आपने सुना है, अकाउंट्स की यही खासियत है. जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, प्रैक्टिकली you are feeling that, and that is what your subject is, right? So Vikram Samvat we follow. Now here page for puja which is maintained, first page of any book, that is रोज मेल और बैठो मेल in the business. इसका मीनिंग क्या होता है आगे हम देखेंगे. That is very very sacred and no accounting entry is made on this. इसमें हम लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, और यहाँ पर हम हर ट्रांजेक्शन की शुरुआत भी हम करते हैं श्री सवा एक रुपए से, यानी 1 रुपये और सवा यानी 15 पैसे 25 पैसे. और तो सवा 1 रुपये से हम ये शुरुआत करते हैं. इसका मतलब ये है कि हम सबसे पहला ट्रांजेक्शन कर रहे हैं भगवान के साथ, ठीक है. तो श्री गणेशाय नमः या गुजराती में श्री लक्ष्मी माता जीनु तेज हजो, इस तरह से लिखा जाता है, राइट. नाउ यूज ऑफ द वर्ड श्री, वी आर यूजिंग इन देशीनामा द वर्ड श्री इन द प्रीसीडिंग ऑफ एवरी अकाउंट. यहाँ पर जैसे बिस्किट को भी पार्ले जी कहा जाता है, ठीक है, हर किसी के पीछे जी लगता है, वैसे यहाँ पर उनके संबोधन में हर एक अकाउंट के आगे श्री वर्ड लगाया जाएगा. जैसे कि अगर आप कहते हो कि भाड़ा आप पे कर रहे हो, यू आर पेइंग रेंट, तो यहाँ पर कहा जाएगा श्री भाड़ू खाते. फिर अगर ये दुकान का भाड़ा, श्री दुकान भाड़ू खाते, ठीक है. तो इस तरह से कोई भी अकाउंट है यहाँ पर, उसके नाम के आगे श्री वर्ड लगाना यहाँ पर बिल्कुल आदर समान से है. फिर वो पर्सनल अकाउंट हो, लिविंग अकाउंट हो या नॉन लिविंग अकाउंट हो, यहाँ पर वर्ड श्री लगाया जाता है. नाउ अबाउट द सड़ इटले फोल्ड, इजंट इट. यहाँ मैं आपको पेजेस के हिसाब से भी बता पाऊंगा कि आप किस तरह से यहाँ फॉर्मेट बनाएंगे. इन देशीनामा स्केल एंड पेंसिल्स आर नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मेट्स. फॉर्मेट्स बनाने के लिए आपको पेजेस में फोल्ड लगा करके फॉर्मेट बनाने पड़ते हैं. when you divide the pages in 2 equal parts will be there. Again when you divide, second time when you fold, it will give you 4, and the third time will give the 8 folds. तो 8 folds आपको मिलते हैं एक पेज में. when you open the page, isn't it, it will be with the 8 third. because of this you have the folds here. तो बैठो मेल और खाता वही 8 फोल्ड के साथ बनाए जाते हैं, 8 फोल्ड्स. अंडरलाइन दिस.
mark this important. And Roj Mill, which is made, it's also for 8 folds, and subsidiary books जो बनाए जाते हैं उनको 6 fold में यहाँ पे बनाया जाता है, right? Nowadays you can get a ready-made book also with the ready-made formats that are given into the Deshinama books. Now the word credit is used here for jama and debit is used for udar. तो यहाँ क्रेडिट और डेबिट वर्ड जब तक नहीं आए तो उससे पहले से हम उन्हें यूज करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं उधार और जमा के हिसाब से. इफ आई वांट टू रिसीव मनी फ्रॉम शांति लाल, तो शांति लाल भाई खाते उधार, मतलब मुझे उससे पैसा रिसीवेबल लेना है, isn't it? And if I want to pay to someone and still it is payable from my side, मेरे अकाउंट से अभी भी अगर धवल को पैसा देना बाकी है तो श्री धवल खाते जमा, એટલે ધવલના પૈસા મારી પાસે જમા છે. It is mean as per this system. So jama is for credit and debit is for udhar. Now how do we write in the fold? किस तरह से हम फोल्ड में लिखते हैं इसके बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं. इन द 8 फोल्ड 4 फोल्ड्स आर फॉर उधार साइड एंड रिमेनिंग 4 फोल्ड्स आर फॉर जमा साइड. हाउएवर देशीनामा में सबसे पहले जमा साइड आता है, उसके बाद उधार साइड लिखा जाता है, राइट? तो पहले इन चारों में ईच जिनके 4-4 कॉलम है, पहले कॉलम में हमेशा अंडरलाइन दिस फर्स्ट फोल्ड अमाउंट कॉलम इज रिटन, and in the remaining 3 folds the name of account that is affected, debit or credit, it is written. और इसके नीचे लिखा जाता है in brief what economic transactions you are doing with that person, and at the end ledger folio number is written after all the transactions is being deposited. इसके बाद ledger folio number in 3rd या 4th fold में लिखा जाता है, right? And with this the method of the recording has been done. Now while writing the amount you use the sign. Suppose if you want to write 121 rupees and 25 पैसे, so आप जब देखेंगे कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में यहाँ पर 121.25 है, पर देशीनामा में ऐसा नहीं है. देशीनामा में you will use the J sign. Word J sign indicates olayo, O-L-A-Y-O, underline this, or also known as H is silent, holayo, राइट? तो देशीनामा में होलायो और ओलायो का क्या मतलब है? ये जे साइन आता है जिसे हम लगाते हैं रुपीस और पैसे को अलग करने के लिए, सेम दैट वी यूज इक्वल टू. लाइक इफ यू वांट टू राइट 628.15 you will write like 628 then J symbol 0.15, isn't it? You would have often seen, if observed in any provision store today also, when a shopkeeper is taking an order from you, और जैसे जैसे सामान आ रहा है तो आपके बताए गए हर एक आइटम के अमाउंट के कॉलम में वो आज भी जे का सिंबल लगाते हैं. विद दैट ब्रीफ जे सिंबल इट जस्ट मीन्स दैट रुपीस एंड पैसे आर now separate. Language that we discuss, it will be in regional language. And ink, generally it is in black ink written, but nowadays blue pen are also allowed. Now let us talk about what books are maintained under Deshinama system. तो देशीनामा सिस्टम में सबसे पहले तो रफ बुक रखी जाती थी, और जान करके काफी आश्चर्य होगा कि यहाँ रफ बुक के बहुत सारे नाम हैं. यहाँ इससे तांचन, टिप्पन, सुडियू, दानिया, घड़िया, अड़दिया इस तरह से नाम से जाना जाता है. तो आइए एक एक करके इन मिसाइल्स के नाम जो यहाँ पर बुक के तौर पे हैं जानते हैं. सो इन business transactions take place continuously during the day and it is not convenient to write the book during the day. यानी कि जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उस टाइम पर तुरंत अगर आप एंट्री करने जाओगे जर्नल एंट्रीज की तो पॉसिबल नहीं है. इसीलिए बिजनेसमैन क्या करते हैं, तांछण या टिप्पण इस तरह के लूज शीट्स और स्लेट्स होते हैं, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोविजन स्टोर पे अगर आपने देखा होगा तो एक राइटिंग पैड होता है उनके पास, और सिर्फ छोटे से ऐसे पतले से कागज लंबे होते हैं जिसपे वो अपने अमाउंट और सिर्फ सामान लिखते जाते हैं तुरंत. तो इसे कहा जाता है तांछन या टिप्पण. फॉर अ बिग बिजनेसमैन वी हैव मेनी ट्रांजेक्शंस एंड बिकॉज सच रिकॉर्ड बुक हैज बीन मेंटेन. इसके बहुत सारे नाम आए जैसे कि गाड़िया, सुंडियू, दानिया, अड़दिया, इस तरह के जो भी नाम है दे हैज बीन गॉन थ्रू विथ इट. तो किसी भी तरह की अगर कोई एरर हो जाए, तो अगर ट्रांजेक्शन छूट जाए तो बिजनेसमैन के लिए ये रफ बुक बहुत काम की होती है, राइट? नाउ रोज मिल. नाउ रोज मीन्स डेली and made means we are writing
and we are tallying it, matching it. इसीलिए रोजमेल means it is same as journal that is maintained under double entry system. Underline this. It is maintained in Deshinama for daily transactions. Rojmil is the basic or primary book of accounting under Deshinama system. Make a note of it, and very importantly, they can ask you any book, any books from Deshinama system for the large mark exam that you are going to now, external that you are going to now follow further. Cash and credit transaction both are recorded in Rojmil, and closing balance, which is known as cash on hand, Rojmil ke liye it is termed at Purant Baki, and it is maintained on daily basis. Hence, at the end of the day, all the cash balance is found. Also, ledger and posting are done, and ledger are prepared on the basis of Rojmil. नाउ अब अगर इसी रोजमेल को आप बहुत ज्यादा अगर ट्रांजेक्शन हो गए तो बहुत सारी रोजमेल आपके पास हो जाएगी. सो बेस्ड ऑन दैट बड़े बिजनेस जिनके पास ट्रांजेक्शन बहुत कम है, अब रोजमेल तो रोज के हिसाब से बनाई जाती है, बट व्हेन द ट्रांजेक्शंस आर कंपैरेटिवली वेरी लेस, जब ट्रांजेक्शंस बहुत कम है, व्हेन दे आर लेस इन नंबर, आपकी जो रोजमेल आप यूज करोगे इसके पेजेस सिर्फ और सिर्फ सरप्लस में रहेंगे, राइट, इट विल नॉट बी इन यूज. तो ऐसे ट्रांजेक्शंस पे रोज ट्रांजेक्शंस करने के बजाय बिजनेसमैन आराम से एक सप्ताह में, एक हफ्ते में, 7 दिनों में या फिर 15 दिनों में बैठ कर के सारे ट्रांजेक्शन एक साथ जर्नल के रिकॉर्ड करेंगे. इसीलिए उसे कहा जाता है बैठो मेल, जिसे बैठ करके बनाया जाए, थम के बनाया जाए, इसीलिए इसका नाम है बैठो मेल और थम मेल. इट इज द कलेक्टिव नेम ऑफ रोज मेल फॉर some predetermined period of days. At the end of fortnight it is maintained and it is extracted. Now khata vahi is the other name of ledger account. See, ledger is the main book of accounts, and these ledger accounts are opened and posting is done in such ledger account from Rojmail, and Betomail and subsidiary books from all these accounts. खाता वही ledger are prepared, जैसे कि हमारे double entry system में है. For खाता वही also a book containing 8 fold पेज इज यूज, जैसे कि सड़ हमने देखें लेजर के लिए 8 सड़ वाले पेज यूज होते हैं. फर्स्ट 4 आर फॉर डेबिट एंड अनदर 4 आर फॉर क्रेडिट साइड खाता वही में, और बाकी की जो बुक्स हैं इनमें लिखने का तरीका अलग अलग है. 1 पेज इज केप्ट फॉर ईच अकाउंट. नाउ फर्दर सब्सिडरी बुक्स को आपको यहां पर पेटा नोद बोला जाता है. पेटा मीन्स सब, यानी आउट ऑफ द मेन वी हैव सब कैटेगरी, सो इसे कहा जाता है पेटा नोद. इन एडिशन टू रोजमेल वी आर प्रिपेयरिंग पेटा वही विच इज ऑल्सो नोन एज पेटा नोद सब्सिडरी बुक्स इन विच ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फॉलोइंग पेटा नोद आर यूज्ड इन देशीनामा. ये जानते हैं इसके नाम क्या है. दे आर जमा नोद फॉर परचेज बुक, उधार नोद फॉर सेल्स बुक, सेल्स को यहाँ पर वकरा वकरा भी बोला जाता है, इसलिए गुजराती में पूछते हैं कि તમારા ધંધાનો વકરો કેટલો થયો, सेल्स कितना हुआ आपके बिजनेस का. दागिना मिल विच इज फॉर नॉट फॉर ऑर्नामेंट, इट इज फॉर स्टॉक रजिस्टर, राइट. देन आंकड़ा वही, सुदा वही विच इज ऑल्सो नोन एज काची वही, कच्चा खाता के लिए आंकड़ा वही. उग्राणी नोद जिसके नाम में ही है कि हम इसे कलेक्ट करेंगे, तो कलेक्शन बुक. जांगड़ नोद जहां पर जांगड़ सेल्स ट्रांजेक्शंस, यानी ऐसे ट्रांजेक्शंस जिसमें कई बार रिटर्न्स भी आ जाते हैं सेल किए हुए, उसे जांगड़ सेल्स कहा जाता है. वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर होते हैं जांगड़ नोद में. करार नोद जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यूज की जाती है. ब्याज वही, मेक इट ब्याज वही, ये इंपॉर्टेंट है, जहां पर सारे डिस्काउंट की इंफॉर्मेशन होती है. हुंडी वही यानी कि बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, राइट. इसी का एक भजन आपको नरसिंह मेहता की तरफ से भी देखने मिलता है कि जब पैसे नहीं है पर फिर भी बिल बना के दिया है, पर किस बेसिस पे दिया है, ठीक है, इस बिल का पैसा आप क्या दे पाओगे. तो नरसिंह मेहता कहते हैं कि मारी हुंडी राक्षे मारो कानो लाल. तो ये हुंडी वही यानी कि बिल्स रिसीवेबल. कबाला वही और करार नोद, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एक्सेप्टेंस क्या होता है आगे, और हवालो क्या होता है, और बैंक वही जिसमें बैंक के ट्रांजेक्शंस होते हैं. नाउ वी प्रिपेयर आवरो all those transactions that are recorded in Betomail and Rojmail and subsidiary books are again recorded in another book at the end of 15 days, so that we can check if any error is done, that will get tallied from here, and closing balance of it is tallied with the closing balance of Rojmail. तो इस तरह से हम हर एक बार अपने अकाउंट्स की गलतियां चेक कर पाए उसके लिए आवरो बनाते हैं. यहाँ एक कहावत है
जिसमें कहा जाता है कि आवरो करे ते भूल नहीं करे। अगर आप आवरो बनाते हो, राइट, तो आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करोगे। जबकि एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि ये आवरो बिल्कुल भी यहाँ का ट्रायल बैलेंस नहीं है। देशी नमक का ट्रायल बैलेंस अलग है और आवरो अलग है, ठीक है। यानी आप डबल एंट्री सिस्टम में जो ट्रायल बैलेंस बनाते थे वो ये आवरो नहीं है। टू चेक वेदर ऑल द एंट्रीज आर डन करेक्ट और नॉट, ट्रायल बैलेंस इज डिफरेंट, आवरो इज डिफरेंट। नाउ it is generally maintained by shroffs and big businessmen to detect the errors. It is useful tool for control. Now, interestingly, we are going to talk about the terms that are in देशीनामा system. काफ़ी सारे ऐसे terms को सुन के आपको हंसी भी आएगी और काफ़ी नया भी लगेगा और सुना हुआ भी लगेगा कि ये हमने कहीं ना कहीं सुना है। जैसे कि हम डबल एंट्री सिस्टम में कहते हैं कि हमारे पास कैपिटल ही सब कुछ है। हालांकि यहाँ पर कैपिटल के भी दो मेथड थे, एक लॉन्ग टर्म जिसको हम कैपिटल रेवेन्यू वर्सेस कहते थे, और दूसरा जो कैपिटल ओनर लेके आ रहा है, इज इट? और बचपन से हम जो कैपिटल देखते आ रहे हैं वो कुछ और ही है। तो यहाँ देशी नामा में कैपिटल इज नोन एज श्री भंडोल खाते, यानी भंडोल इज द थिंग इन देशी नामा विच इज कैपिटल विच इज नोन इन double entry account system. When the owner starts a new business, as well as during the year of the business, he brings his personal funds, personal assets, goods, assets, receivables that are recorded as capital. यहाँ capital को कहा जाता है श्री भंडोड़ खाते, भंडोड़, अड़नी मात्रा लगे एमा. And in partnership form, the total capital is known as मूडी. अब यहाँ एक ओनर है सोल प्रोप्राइटर में, तो वहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। बट ऐसे बिजनेस के लिए जहां पर 2 से 3 ओनर्स हैं, तो वहां हर एक के नाम के आगे उनका जो मूडी यानी कैपिटल अकाउंट हो जाए, जैसे आप कहते हैं कि आदर्श कैपिटल अकाउंट, इजंट इट, भावेश कैपिटल अकाउंट, चिंतन कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ कहा जाएगा श्री आदर्श नु मूडी खाते। इसका मतलब आदर्श जी मूली नहीं खाते, ठीक है, राइट। मस्ती अपार्ट, इट इज हियर नोन एज भावेश नु मूडी खाते, श्री चिंतन नु मूडी खाते, राइट। सो दिस इज टर्म्ड एज श्री भंडोर यानी कैपिटल अकाउंट। फर्दर ड्रॉइंग्स आर टर्म्ड हियर एज घर खर्च खातू। कितना इंटरेस्टिंग है कि नाम सुनते ही पता चल जाता था कि ये ड्रॉइंग्स है, राइट। तो घर खर्च खाते का मतलब होता है व्हेन ओनर विड्रॉस the amount or any goods for the personal purpose, for personal use. This is termed as drawings in double entry system which is श्री घर खर्च खाते। यहाँ पे भी अलग अलग टाइप के आपको एग्जांपल्स हम दे देते हैं कि अगर यहाँ चिंतन कुछ कैश विड्रॉ कर रहा है तो हम कहते थे चिंतन ड्रॉइंग अकाउंट इन डबल एंट्री सिस्टम, बट इन देशीनामा द सेम विल बी नोन एज चिंतन नु उपाड़ खातू। चिंतन नु उपाड़ खातू means he is withdrawing and his withdrawal account, it is घर खर्च। now दुकान खर्च obviously correct जो आपने सोचा, for shop expenses and small and daily day to day miscellaneous expenses दुकान खर्च was prepared, for example wages, cold drinks, tea and refreshment, postage expense, stationaries you can see, then you can go with, so miscellaneous expenses was for दुकान खर्च, for small petty expenses of shop. Now श्री वटाव खातू, now वटाव will be a new word for you. इसे देशी नामा में डिस्काउंट के लिए जाना जाता है। हियर कैश डिस्काउंट, अलाउंस, कमीशन, लॉस बाय फायर इन द बिजनेस एंड एनी लॉस दैट इज टर्म्ड, एक्चुअली बैड डेट्स के लिए भी यहाँ पे अलग वर्ड आया है, जबकि हम बाकी सारे लॉस को डबल एंट्री सिस्टम में लेते हैं लॉस में, पर यहाँ पर इन लॉसेस में से जो डिस्काउंट में हुआ लॉस है उसे कहा जाता है वटाव खाते। अलाउंस, कमीशन एंड ऑल आर वटाव। हाउएवर nowadays businessmen maintain separate accounts for each expenses as per loss or profit or gain, जैसे कि घाल खत is used for bad debts earlier, तो देशी नामा में यहाँ bad debts के लिए श्री घाल खत खाता यूज किया जाता है। कई बार अब कमीशन हो जाता है जिसका कोई नाम चेंज नहीं किया है, कमीशन कमीशन है, अब इसका कैसे नाम चेंज करेंगे। सो इन देशी नामा श्री कमीशन खातू, इस तरह उसके जो नाम है वो चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ श्री और खाते उसके आगे और पीछे लगाया जाता है। नाउ फर्दर हियर वी हैव श्री विगत खातू। विगत मीन्स डिटेल्स इन एनलार्ज्ड डिटेल्स
बहुत ही ज़्यादा अगर हमारे पास है, when more than one accounts getting debited or credited, we are passing combined entry in double entry system. So the same thing is here Shri Vigat Khate. When we combine the debit items and we write in Shri Vigat Khate, it means all these accounts are combiningly debited. All these accounts are combiningly credited. They have the same effect, isn't it? So total amount एक बार लिखा जाता है. Suppose we have the expenses like 2000, 3000, 5000. Total will be 10,000. सो श्री एक्सपेंस खाते, श्री खर्च खाते, विगत खाते, इस तरह से आप विगत खाते के साथ 10,000 रुपये लिख सकते हैं और उसके बाद आप उसके तो तीनों की अमाउंट अंदर लिखते हैं 2000, 3000 एंड 5000 वी हैव मेड एन एक्सपेंस. So for this purpose Vigat Khate is to save the time and labor, and at this time it is very rarely found. Now Shri Shah Khate. My dear students, interestingly here, when the name of such a person is forgotten, to whom which we have transacted, just the transaction has taken place, but the name is forgotten. So we used to write Shri Shah Khate. Shah means Shahukar, or Shah means some person, but very respectfully, he would be a person, but name we don't know. तो यहाँ पर श्री डैश खाते लिखने से अच्छा है श्री शाह खाते लिखते हैं, isn't it? या फिर नाम खाली छोड़ने से अच्छा श्री शाह खाते लिखा जाता था, राइट? तो देखो जिसका नाम भूल गए हैं उसको भी हम यहाँ पर पार्ले जी की तरह जी माने इज्जत दिए जा रहे हैं यहाँ पे, राइट? सो दिस इज हाउ आवर सेक्रेट देशीनामा सिस्टम यूज टू बी रिटन. And when suppose if we have remember the name, we have got the name, so we used to now close this account Shri Shah Khate and the actual name has to be taken. Nowadays it is also very rare and many of such accounts are now into the verge of extinct. Now as we use suspense account in double entry system, we have Shri Tasalmat Khate. Here Tasalmat खाता सिर्फ उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा जो सस्पेंस में है और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स में से सस्पेंस में है, यानी कि इनके पास से कोई अमाउंट लेनी है या देनी है. बाद में जब उनका नाम याद आ जाता है तो तसलमात खाता यानी सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके रिवर्स कर दिया जाता है. So underline this, when sometimes the name of account to which the transaction is to be recorded but the name is not yet decided or not is recorded, we fail to remember that it is recorded temporarily to the suspense account which is Shri Tasalmat Khate. Shri Deshavar Khatu. Now Deshavar is the person who is going out of the desh, यानी कि हमारे देश से बाहर बिजनेस के काम से जाने वाले को देशावर कहा जाता है. When any person of the firm or Munim ji or the owner himself goes out of station, double underline this out of station, it is for business purpose, business trip है, पिकनिक नहीं है, all right. So यहाँ business trip के लिए जो भी बाहर जाते हैं उन्हें अभी जो अमाउंट आप दे रहे हो बिजनेस में से फॉर बिजनेस मीटिंग्स 3 से 4 दिन का खर्चा जो भी होगा उसके साथ आप सपोज यहाँ से 4,000 की अमाउंट दे रहे हैं तो आप लिखेंगे श्री देशावर खाते 4,000. 4 दिन के बाद जब आपके मुनीम जी या आपके बिजनेस पर्सन आपका एग्जीक्यूटिव जब वापस आ जाएगा तो उनके पास से आप बिल मांगोगे कि ये 4,000 का हिसाब आपने कहाँ किया. एग्जैक्टली करेक्ट. आपको अभी याद आया होगा डबल एंट्री सिस्टम में हमारे पास वाउचर्स इसके लिए है, ठीक है. तो यहाँ ये वाउचर जिनकी पूरी डिटेल हमें मिलेगी, आपके टाइम पर वाउचर अवेलेबल हैं तो देशावर खाते को बाद में रिवर्स किया जाएगा बाकी सारे खर्चे के साथ and it will be closed and credited, right? This is a temporary account. Shri Hathu Khatu. जी सही सुना आपने, श्री हत्थु खातु. It is when the amount is to be paid to some creditor of the business and it is sent through some person or आंगड़िया, underline आंगड़िया, it means courier. अगर आप ये अमाउंट किसी को ड्राफ्ट कर रहे हैं, किसी को सेंड कर रहे हैं, जो आज के टाइम पर इतनी आसानी से आप बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र या चेक से या जीपे से पे कर देते हो, उस वक्त अगर इसका हिसाब है और बाद में किसके थ्रू भेजा गया है अगर याद नहीं रहता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है और उसकी वजह से हिसाब मेल नहीं होते. इसीलिए श्री हत्थु खातु उसके लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर किसी को पैसा दे रहे हैं और हम किसी क्रेडिटर को पे कर रहे हैं किसी आंगड़िया या पर्सन के थ्रू. बाद में जब वहाँ तक पैसे पहुँच जाए तो क्रेडिटर के नाम पर हम पूरा पेमेंट कर देते हैं और हत्थु खातु को क्लोज कर दिया जाता है, डेबिट किया जाता है, राइट. नाउ श्री चांदला खातु.
ચાંદલા is the word for the gift that we give in the marriages. જે આપણે અત્યારે લગ્નમાં આપીએ છીએ, हम जो शादियों में अभी गिफ्ट देते हैं, जो कवर के अंदर पैसे रख के देते हैं, उस गिफ्ट को चांदला कहा जाता है। तो यहाँ भी अगर बिजनेस के बहुत सारे रिलेशन हैं, डेटर्स क्रेडिटर्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, मुनीम जी के साथ, अकाउंटेंट के साथ, तो अगर इस तरह के गुड ओकेशन पे हम वहाँ जा रहे हैं, उनके घर पे हमने कुछ गिफ्ट दिया, कुछ चांदला दिया, या कवर में एनवलप में किसी तरह का अमाउंट अगर हमने अपने बिजनेस की तरफ से गिफ्ट की है, तो उसे लिखा जाता था श्री चांदला खाते, राइट। और इसीलिए ये ट्रेडिशन अभी ख़त्म हो रहा है कि कहीं पर अभी इसे कई बार दुकान खर्च खाते में या मिसेलिनियस में भी लिख देते थे। बट देखिए, हमारी देशी नमा में मिसेलिनियस में भी बहुत सारे अंदर सेगमेंट्स थे, राइट, जो आज अब ख़त्म हो रहे हैं। हियर वी हैव श्री तिलक वद घट खातु। फिर से एक बार, श्री तिलक वद घट खातु। सिलक यानी चिल्लर, यानी सिक्के, जो कॉइन्स आपके पास हैं, और वदघट यानी कम या ज़्यादा अगर पड़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आगे आपको बताया कि अगर किसी तरह से आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं होता है, तो इन स्टेटमेंट में आप यूज़ करते थे सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में आगे हमने देखा कि तसलमात यूज़ किया जाएगा अगर सस्पेंस में पर्सनल हुआ, किसी से लेना देना हुआ। तो अगर किसी रियल अकाउंट में जैसे कि क्लोजिंग बैलेंस, अगर आपका एक्चुअल कैश बैलेंस सपोज यहाँ पर बता रहा है 5200 रुपीज़, राइट, और आपने जब कैश की गिनती की तो आपके पास आया 5198। तो भाई 2 रुपये कहाँ गए? अब इस 2 रुपये की वजह से पूरा फाइनल अकाउंट टैली नहीं होगा, राइट। इसीलिए इसे 2 रुपये को कहा जाता था श्री सिलक वद घट खाटू। ये घटता भी है और बढ़ता भी है, कई बार 5204 भी हो सकता है, राइट। तो इन खातों को श्री सिलक वद घट खाते में लिखा जाता था। अब यहाँ क्लोजिंग बैलेंस को सिलक यानी चिल्लर, जो लास्ट में आप गिनते हैं सिक्कों को, सिलक कहा जाता था रोज मिल बैठो मिल के हिसाब से, एंड दे शुड टैली विद द एक्चुअल कैश। So if the actual cash balance is more or less, then the balance as per the books of accounts are to be known as different is to be transferred and credited to सिलक वदघट खाते। अगर कम या ज़्यादा पड़ जाए तो उसे रिवर्स इफेक्ट दे करके बाद में जब हिसाब मिल जाए, उसके बाद करेक्ट बैलेंस आ जाता था और उसके बाद हम इस सिलक वदघट खाते को बंद कर देते थे। श्री उबलेख खाते। उबलेख क्या होता है? हम किसी को पैसा दे रहे हैं व्हेन द अमाउंट इज लेंट फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए, अगर बिजनेस के ही किसी पर्सन को अगर पैसा दे रहे हैं बिजनेस में, उसे कहा जाएगा उबलेख खाते। अब इनका कोई भी जो पैसा है, such amount which is to be received back within 2 or 4 days, it अकाउंट इज नॉट ओपन, इसका कोई भी लेजर अकाउंट नहीं बनाते थे। इसीलिए उबलेख की अमाउंट रोजमेल में एलएफ की जगह यू लिखी जाती थी। इसके थर्ड और फोर्थ कॉलम में एलएफ की जगह यू लिखा जाता, क्योंकि उसका कोई लेजर अकाउंट लंबे समय के लिए नहीं रहेगा। एंड व्हेन दैट पर्सन इज पेइंग यू द मनी, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू जस्ट राइट दैट उबलेख अमाउंट हैज बीन टेकन और गिवन। तो उबलेख अमाउंट इन रोजमेल प्रेजेंटली they don't even show oblique amount, and such note is now not acceptable from taxation point of view। क्योंकि आप ये देखेंगे कि टैक्सेशन के टाइम पर अगर इस तरह के वर्ड श्री सिलक वदघट या उबलेख अगर लिखे जा रहे हैं, तो टैक्सेशन विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड द टैक्सेस कैन बी अवॉइडेड बिकॉज ऑफ दीज सच अकाउंट्स। So because of these they are not used till now. Now the next account is ऊपर टपके। यहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई। ऊपर टपके का मतलब होता है कि अभी अभी टपके हमने बिजनेस शुरू किया और ये आ पड़े। तो ऐसा किसी कस्टमर्स के लिए नहीं कहा जाता है। अगर आगे की अमाउंट आपने देखी कि उबलेख 3-4 दिन के अमाउंट को कहा जाता है, बट ऊपर टपके इज फॉर सम पर्सन। आपने देखा होगा ऐसे कोई आकर के आपको कहेगा, आपका दोस्त या मित्र आकर के कहे, भाई पैसा आपने, पैसे दो ना मुझे 200 रुपये दो, बस अभी शाम को देता हूँ, 2 घंटे में देता हूँ। ऐसे लोग हैं ऊपर टपके, ठीक है। when the amount is lent to any person for a day or for even shorter time or for hours, so that amount is not recorded in entry as well in Rojmil। यहाँ तो एंट्री भी नहीं करते हैं, राइट। सो दिस अमाउंट इज विद एन assumption कि ये बैलेंस आपको आज शाम तक मिलने ही वाला है, अमाउंट मिलने ही वाला है।
तो अगर ये अमाउंट आगे बाद में 3-4 दिन तक नहीं मिलता है तो उसे उल्लेख करके आप रिकॉर्ड बाद में कर पाएंगे। एंड अमाउंट ऑफ ऊपर टपके इज ऑल्सो नोन एज हाथ उछीनी अमाउंट, यानी हाथ के ऊपर से दी गई अमाउंट, राइट। अगेन टैक्सेशन के लिए ये भी एक खतरा है, इसीलिए इस तरह के अकाउंट अब नहीं बनाए गए हैं। कबूलात एंड हवालो। कबूलात यानी वी आर एक्सेप्टिंग, द वर्ड इटसेल्फ सेज एक्सेप्टेंस। हवालो मीन्स ट्रांसफर। नाउ ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अंडरलाइन दिस, द बिजनेसमैन एग्री टू पे एन अमाउंट which is payable to creditor to another person. So हमारा acceptance, we agreed to pay, underline kabulat around the word acceptance. And when the same way, when a businessman agrees to accept an amount from another person instead of his debtor, it is also kabulat. It is also kabulat. अगर आप अपने कस्टमर के अपने क्रेडिटर का पेएबल एक्सेप्ट करते हो या किसी और के लिए आप कहते हो कि आपका पेमेंट भी हम कर देंगे, दोनों तरह से हम तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, तो ये दोनों कबूलात होंगे। बट इंस्टेड ऑफ अराइविंग एट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कबूलात अबाउट डेट, एन इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर दैट इज गिवन फॉर दैट, इट इज नोन एज हवालो। अगर सामने से आपको ऑर्डर मिला है, इट इज एन ऑर्डर टू पे दिस अमाउंट, जैसे बिल में लिखा जाता है, राइट, तो इट बिकम्स अ ट्रांसफ़र। तो इसे कहा जाएगा कि ये एक ऑर्डर है और इसमें आपको ऑर्डर किया गया है पेमेंट के लिए, राइट। सो ये हवालो गिना जाएगा। नाउ हस्ते, दिस वर्ड is used for when many a time business and the receiver or payer of money may not actually be a creditor or debtor, but he may be a clerk or मुनीम जी or any other person। यानी जिसके थ्रू पैसा भेज रहे हो, ये किसी के थ्रू भेजा गया है, इसीलिए जिसको आपने पैसा दिया उसको हस्ते के नाम से लिखा जाएगा, राइट। एक्चुअल पेमेंट किसी और का है और जिसको दे रहे हो वो कोई और है। देयरफॉर टू रिकॉर्ड पर्पसेस द नेम ऑफ पर्सन थ्रू होम द कैश इज रिसीव्ड और पेड इज ऑल्सो रिटन। सपोज यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल है कि 1000 रुपीज इज पेएबल टू रंजना ट्रेडर्स, इट इज गिवन टू मुनीम जी मयंक। हमने मुनीम जी मयंक को पैसा दे दिया कि रंजना ट्रेडर्स को आप 1000 रुपये दे दीजिए। दिस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन रोजमेल बाय डेबिटिंग रंजना ट्रेडर्स एंड इन द अदर लाइन हम लिखेंगे हस्ते मुनीम जी मयंक। इसका मतलब मुनीम जी मयंक को पैसा दिया है और वो पहुंचाएंगे रंजना ट्रेडर्स तक। सो समटाइम्स ओनली एच इज रिटन इंस्टेड ऑफ हस्ते, तो एच मुनीम जी मयंक इस तरह से। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज द नेक्स्ट वन, मिति। मिति का मतलब क्या होता है? देखिए, हम जो तारीख लिखते हैं विक्रम संवत में, जिसमें पहले उसका ईयर, देन मंथ, देन पक्ष, देन डेट, तारीख, इस पूरे फॉर्मूला को मिति कहा जाता है। सो विक्रम संवत, देशी मास एंड तिथि आर नोन इन देशीनामा एज मिति। फॉर एग्जाम्पल संवत 2071 ना चैत्र सुद एकम, ठीक है, तो इसे मिति कहा जाता है। मिति तारीख के इस समूह को बताया गया है। So after ending with the terms, we are finally with the points of difference that can be asked in the exams. So देशी नामू and double entry system, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में point of differences क्या है? Let's discuss about that. Books are so long in देशी नामा, they are folded and they are blank, they are bounded in middle, they are tied with a string, whereas in double entry they are hard bounded, horizontal, and they are ruled with the format, isn't it? Now sides, underline, left side is called jama and right side is called udhar, whereas in double entry we have debit udhar and credit jama respectively on left and right side. Now ink, in Deshinama underline black ink is used, and in double entry system red ink is used for some special figures. However, both can be gone in the similar blue ink. Books of original entry, in Deshinama system we have here Rojmill as the books of original entry, which is also known as journal. But in double entry system, journal is the primary original entry book. Amounts are generally written in first fold in Deshinama, whereas in double entry system, we have the last columns here for amount. Now, while posting entries from Rojmail to Khata Wahi, this will be very important. Now, items of Jama side of Rojmail are posted on Jama side of Khata Wahi, and similarly, Udhar side of the posted is known as Udhar, is posted on Udhar side of the Khata Wahi account. यानी यहाँ लेजर की भी सेम साइड पे पोस्टिंग किया जाता है, जबकि
हमारे डबल एंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं है. एंट्रीज फ्रॉम डेबिट साइड ऑफ द ईच कैश बुक आर पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ लेजर एंड क्रेडिट साइड ऑफ ईच कैश बुक इज पोस्टेड ऑन डेबिट साइड ऑफ लेजर. यानी कि यहाँ जो देशीनामा सिस्टम में जो आप कैश बुक बनाते हो उससे पहले जमा साइड और उसके बाद उधार साइड के साथ बनाया जाता है, यानी पहले क्रेडिट फिर डेबिट. इसीलिए लेजर एंड पोस्टिंग में भी सेम सेम पोस्टिंग हो जाता है, जबकि डबल एंट्री में ऐसा नहीं है. Country of origin, Deshinama system is from India itself, is our country, it's Swadeshi, Deshi system. And whereas Italy has the origination, it has come from Europe, the double entry system from Luca Pacioli. Accounting year, Vikram Samvat is taken here, and English year, that is from April to March, is taken in double entry system. Our Vikram Samvat in Deshinama goes from Kartak to Aso. In Deshinama system, pages, the leaves of pages can be added or removed as per the requirement. This is appropriate for small traders. They can get the benefit of double entry system by making minor changes. Finally, alas, this means that anybody can tamper with them when you have such a leverage. Hence, the bounded books with pages numbers used in double entry system, and they must be used in Deshinama also. There is no system of columnar bookkeeping in the Deshinama system, which is again a more big, larger limitation, whereas various items are dealt in. It is convenient to have columnar book in the double entry system. Suppose if a person deals with hosiery and cutlery, it will be convenient to have two columns in the Jama note, that is purchase book, that we make as per goods columnar in double entry system. So separate books of these two items can be avoided. So in Deshinama we have no columnar for bookkeeping. Vouchers for all the transactions are not systematically filled if not are maintained into the main ledger, that in Khata Vahi, that is in Deshinama system, and this makes a detailed audit trail impossible. So as per the auditing also Deshinama system can't be followed. इसलिए Deshinama systems को अब डबल एंट्री सिस्टम में ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. It fails to satisfy the requirement of modern times, and particularly it is not useful for decision making in modern big business units. This is the reason why Deshinama is not so prevailed and popular now, and because of this now double entry system has got the popularity, got the acceptance, and also because of language point of view, double entry system that is followed throughout the country, throughout the continent, and throughout the world. Because of this we can compare our results with any of the business of any continent anywhere in the world. All right. So with the ending of unit 3, we have come across and we have understood about the systems that were prevailing in our accounting. हमारे accounting में पहले से ही देशीनामा system था, और आज भी बहुत सारे business units देशीनामा system का उपयोग करते हैं, प्रयोग भी करते हैं. साथ में अब देशीनामा system धीमे धीमे लुप्त होता जा रहा है. आपने भी देखा होगा कि पहले इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाया जाता था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सॉल्व किए जाते थे. बट एट कॉलेज लेवल दे हैव टेकन एट ओनली इन द थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू. कुछ अपनी तरफ से हो सके तो कुछ रिसर्चेस कर लेना आप, पॉसिबल हो उतना, सो दैट यू कैन रिमेंबर, you can write, and hope so that this video would be very helpful for you in cracking the exams also and in the terms of knowledge also. So मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए stay happy, stay motivated and keep learning. Goodbye all.